चलो let's do. So 2 students have got the correct answer. Yes. At 25 degrees Celsius, the density of 18 molar H2SO4 is 1.8 gram per centimeter cube. The mass percent of H2SO4 in aqueous solution is. So 18 molar. अभी अपने को mass percent 18 molar दिया हुआ है and they are telling us to calculate the mass percent of H2SO4. So मुझे अगर mass percent चाहिए H2SO4 का, so मेरा formula क्या आएगा? Mass of H2SO4 divide by mass of H2SO4 plus mass of water. Correct na all of you? That is the total mass of solution into 100. So 18 molar indicates what? 18 moles of H2SO4 in 1 liter of solution. So 18 moles से मैं mass calculate कर सकती हूँ ना? Molar mass is 98. So mass कितना होता है? 18 up into 18 into 98. 1764 grams. Now next what I required is the mass of solution, total mass of solution. So यहाँ पे density दिया है solution का and I have volume of solution. So I can calculate mass of solution, all of you. Mass of solution will be density into volume. So that is 1.8 into कितना है volume? 1 liter. That is 1000. So it will come 180. $1800 आएगा ना? So now calculate Yes, ma'am. mass percent. It is 1764 upon 1800 into 100. 98%. कितना आएगा? 98%. ओके चलो सब ये सब लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, वापस से घर पे इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो और अभी 7th क्वेश्चन सॉल्व करो. यू हैव 3 minutes टाइम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, all of you on your cameras. सॉल्व कर रहे हो, मुझे दिखने दो.
Devansh is getting A answer. Yes, others. Yes, Devansh का answer correct. Rudra correct. Yes, others, do it fast and on your cameras. Divya, Durva, Aniket Kamble, Kinari, Kunal, Malhar, Riya, Sami, Savi, Sharvari, Tejas. Yes, Malhar and Aniket correct है. So all of you, seventh का answer is A. Ammonia is 14.8 molar aqueous ammonia with density 0.8980 gram per ml. Mole fraction of ammonia in this solution. अभी जैसे पहले किया है वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है. 14.3 molar indicates what? It is 14.3 moles in 1 liter of solution. Mole fraction of ammonia in this solution. So mole fraction of ammonia का formula क्या आएगा? Moles of ammonia upon moles of ammonia plus moles of water. So moles of ammonia तो already मिल गया है. अभी तुम लोग को क्या चाहिए? Moles of water चाहिए. So density of solution is given. I'll get mass of solution. That is 1000 into 0.8980. So कितना आएगा mass solution का? 8980 solution का mass आया. Now in this there is also a mass of ammonia, but I am not interested in mass of solution. I am interested in mass of water. So it will be sorry. So ammonia ka mass I'll get it from its mole. So 8980 minus कितना आएगा? 14.3 into 17 ना. So it will come how much? 8980 8742. So now I'll calculate moles of water. 8742 minus, sorry, divide by 18. So now all of you calculate mole fraction.
एक मिनट, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। 14.3 इंटू 17 दैट इज 655 ले लेती हूँ मैं इसको। 655 डिवाइड बाय 18, 36.389. Now you calculate mole fraction. 14.3 divided by 14.3 plus 36.8, 0.282, that is A option. Okay. Yes, all of you. Next question करो चलो. Eight question. आया आंसर? इन लोग को तो आया रहेगा ना. देवांश अनिकेत का हुआ रहेगा. देवांश अनिकेत मल्हार एंड रुद्र. Yes, ma'am. सिद्धांत का भी हुआ रहेगा. चलो 8 क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग. इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एंड start solving 8 question. And all of you, those who are not able to solve here the complete question, you have to solve it after class. But you are supposed to solve it, हाँ? क्योंकि मैं यहाँ पे 10 minutes नहीं रुक सकती हूँ एक क्वेश्चन के लिए. एट हो गया है तो 9th भी सॉल्व कर लो. किनरी पेज नंबर नहीं पता है. 2 क्वेश्चंस किए हम लोग ने कब से सॉल्व. पेज नंबर 7 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1. Kinari, on your camera. That's why I tell everyone to on your cameras. Yes, all of you. मैंने भी मेरा कैमरा ऑन किया है. तुम लोग भी करो. चलो फास्ट. चित्रा, दर्श, दिव्या, दुर्वा, अनिकेत, कांबळे. नहीं तो मैं बाहर निकालती हूँ एक एक को लेक्चर में से. सावी. कुणाल, ये आ रहा है ना करने के लिए. 11th स्टैंडर्ड में किया है हम लोग ने.
वही सेम टॉपिक रिपीट है यहाँ पे सोल्यूशन में। सिद्धेश ऑन योर कैमरा। रुद्र, सावी, अनिकेत कांबळे, दुर्वा। अनिकेत एंड दुर्वा को अभी मैं बाहर निकालूंगी लेक्चर में से। साक्षी आ रहा है सॉल्व करने के लिए? किया है ना 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने? सामी आंसर आया? एक का आंसर है सी। Yes, all of you. Eighth answer is C. Aniket is getting correct answer. Sumitra wrong. So let's solve it. क्या बोला है? If one assumes the volume are additives, what is the concentration of NO3 minus in a solution obtained by mixing 275 ml of 0.2 molar KNO3, 325 ml 0.4 molar MgNO3 and 400 ml water. So all of you have 3 solutions. ठीक है? एक solution है किसका? KNO3 का, जिसके अंदर वॉल्यूम है 275 ml एंड 0.2 मोलार। दूसरा सॉल्यूशन है MgNO3 ट्वाइस का, जिसका वॉल्यूम है 325 ml एंड 0.4 मोलार। और तीसरा वाटर है, दैट इज जस्ट 400 ml। अभी ये तीनों को मिक्स किया, वी हैव मिक्स्ड दिस थ्री, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 275 प्लस 325 प्लस 400, यस। एट 800 ना? Now 0.KNO3 वाटर के अंदर जैसे ही मिक्स होगा, it will give you KNO K plus. It will be 1000 ml, no? 1000 ml. 400 and 275 plus 325. 1000 ml. So it will give you K plus and NO3 minus. इसका concentration 0.2 मोलार है, तो इसका भी 0.2, इसका भी 0.2. ओके, अभी अपने को यहाँ पे K प्लस से कुछ लेना देना नहीं है. We just want is the concentration of NO3 minus. So it will be 0.2 molar. 0.2 molar NO3, but this is 0.2 moles in 1 liter ना? Yes, और ये भी solution by chance 1 liter ही है, so it will remain 0.2 molar only. Clear, all of you?
एक मिनट, मैं जस्ट yes. So here it is 0.2 molar. 0.2 molar is 0.2 moles in 1 liter. But इधर जो वॉल्यूम है that is 275 ml. So it will be अगर 0.2 moles is present in 1000 ml, 1 liter यानी 1000 ml. तो 275 ml के लिए कितना? तो ये जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं चेक करती हूँ कितना आंसर आता है. 0.5. 0.2 into 275 कितना आया? इस मिलीलीटर का लीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ यस मैम. हाँ. सो ये कितना आएगा? 0.055 आएगा मुझे. 0.055 मोल्स आया मुझे. सो ये भी मेरा 0.055 मोल्स रहेगा, ये भी 0.55 मोल्स रहेगा. बट नाउ दिस NO3 इज गोइंग इन 1 liter सोल्यूशन ना. ये जो मोल्स है NO3 का वो 1 liter में जा रहा है. सो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.05 मोल. करेक्ट है ना? फिर नेक्स्ट है इसके अंदर. सिमिलरली वी हैव टू डू इट फॉर दिस 0.4 मोल्स इन 1 liter यानी 1000 ml. तो 325 ml के लिए कितना आएगा? 0.4 into 325 divided by 1000. 0.13 आता है ना? Will give you Mg plus 2 NO3 2 minus. करेक्ट है ना ये मेरा? 0.1 into 325 0.13 मोल्स. सो ये भी 0.13 आएगा और ये 2 into 0.13 आएगा into 2 that is 0.26. सो इधर अभी इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0.26 upon 1. वाटर के अंदर NO3 है ही नहीं. अभी अपने को क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है, इंडिविजुअल नहीं निकालना है. तो टोटल NO3 के कितने मोल्स है? 0.05 प्लस 0.26. These are moles. कितना हुआ? 0.26 प्लस 0.315. 0.315 आएगा. upon 1000.
That is the C option. Okay, this is clear. ये इंडिविजुअल मैंने निकाला है कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर, बट रिजल्टेंट निकालने के लिए दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट ऑप्शनल स्टेप. दिस इज जस्ट ऑप्शनल स्टेप. Yes, all of you, is this clear? If you have any questions, you can ask. चलो next. नाइन्थ वन हो गया अनिकेत? मैम भेजा। मल्हार ने भेजा है आंसर. 9th is correct. Yes, others, start solving. 9. How many grams of MgI2 must be added to 250 ml of 0.0876 molar Ki to produce a solution with I minus 0.1 molar? Yes, Sumitra, answer correct है. Yes, Rudra, correct. So क्या बोला है, कितना मास हम लोग MgI2 का ऐड करना चाहिए Ki में टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन जहां पे I का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.1 मोलर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी सबसे पहले Ki में I कितना है? Ki is 250 ml of 0.0876 मोलर. सो इधर I कितना है? Ki का मोल्स कितना है? 250 into 0.0. मोलारिटी के फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करो टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Ki. सो मोलारिटी 0.0876. मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम है 250 ml और ये है 1000. 1 जा 4 जा. So X will be 0.0876 upon 4. Okay, these are the moles of Ki. What are the moles? I minus जो टोटल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर है. So 0.1 एंड उसका भी सोल्यूशन 250 ml ही आएगा ना. So X is 0.1 upon 4. That is 0.025 moles. So total I का moles है 0.025 and it consists of I of
moles of I from Ki plus moles of I from Mgi2. So moles of I from Mgi2 will be 0.025 minus 0.0219. So ये कितना आएगा? Zero point zero three one. Mgi2 मास बोला Mgi2 का कैलकुलेट करने के लिए. So Mgi2 gives you Mg plus 2I minus. हम 0.0031 होगा. हाँ 0 आए. So if this is 0.031, 1 Mgi2 is giving you 2I minus. So 0.031 will give how much? Zero point 00155 moles. So mass will be into Mg is 24 plus 127 plus 0.431 into Mgi2 का mass, that is 24 plus 2 into 127. So it will come 0.431 grams. That is the B option. Okay. Yes, all of you, this is clear. ऐसे ही किया मल्हार, or you have used some shortcut method? I'm like this one. Yes, anyone who has done this by any shortcut method, tell me. Yeah, I think मैंने बहुत लंबा कर दिया. किसी ने है, अगर किसी के पास दूसरा शॉर्ट मेथड तो मुझे बताओ. चलो, so concept application exercise 1 is done. Okay, you will solve questions 1 to 9 in homework. 1 to 9 homework में करोगे तुम लोग solve. Solved examples या illustrations? Solved, हाँ वही illustrations. मैम हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में डेंसिटी अगर 1 लेते तो आंसर प्रॉपर आता है, बट मुझे क्वेश्चन में कि ऐसा यूनिट थोड़ा जोर से बोलो ना चित्रा. मैम क्वेश्चन नंबर 2 में कंसेप्ट एप्लीकेशन के डेंसिटी ऑफ वाटर 1002 नहीं लेते ऐसा यूनिट में, क्योंकि डीएम क्यूब है ना, मींस ऐसा यूनिट इसका यूज हुआ है. चित्रा मुझे मैसेज करो, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है. Now all of you will solve state level exercise. Open करो सब लोग. State level exercise. 1 to 9. Miss, as homework. Yes, homework.
These are based on the concentration of solution. So concentration based questions तुम लोग सारे solve कर डालो. Then archives, state level का archives. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33. JEE level exercise. Level 1. First question. Sixteenth question. 18th. 19, 20, 21. Level 2. Okay, all of you, these questions are in your homework. Miss, for level 2, it is 1, na? Yes, Just one. yes, एक ही question है उसका. अगर तुम लोग को कुछ मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पे तो प्रैक्टिस करके आओ. मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को डीपीपी दूंगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे. So be prepared and come. Ma'am, next lecture will take what, ma'am? Orals or TPP? कल ही है ना अपना टेस्ट. कल ही है लेक्चर. So tomorrow I'll take DPP. So Devansh and Mallar are having unit test. So you can attempt it without doing homework. Okay. So only Devansh and Mallar has excuse of not doing homework. But if you can solve it. I think इसमें कुछ 20 questions है. शायद 20 भी नहीं है. Okay, ma'am, we'll do as much as we can. ट्राई You करेंगे. try it to do. You try it. If you don't, then it's okay. Otherwise, बाकी सबको ये homework करना है कल. कुछ ज्यादा questions नहीं है दिया है मैंने. कल है lecture इसीलिए. इतना तो तुम लोग करके आ सकते हो. And I'll take DPP. So Mallar and Devansh, if you are going to attend lecture, you have to give DPP. ओके मैम.
Yes, just a minute, all of you. सॉलिड लिक्विड सो उसमें सल्यूट है, सॉलिड एंड लिक्विड है, सॉल्वेंट. सो नाउ ऑल ऑफ यू, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है ना सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सल्यूट and solvent. Now what is solution? When two or more substances are mixed together and those substances get completely dissolved with each other, then वो जो particular सब mixture बनता है उसको हम लोग solution बोलते हैं. Correct ना? Yes, all of you. Yes, all of you. Yes. When two or more substances are mixed uniformly with each other, it forms solution. It consists of, अभी यहाँ पे ये चैप्टर में हम लोग जो भी solutions पढ़ेंगे सब binary solutions पढ़ेंगे. Means एक solute होगा, एक solvent होगा. ठीक है. तो solute जो होता है वो small quantity में होता है. It is present in small quantity. And solvent जो होता है it is present in large quantity. For example, sugar and water. So water क्या है? Solvent है. और sugar क्या है? Solute है. Clear all of you? So हम लोग जब भी शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं तो शुगर को स्मॉल क्वांटिटी में रखते हैं एंड वाटर को लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं ना. ऐसा उल्टा करते हैं क्या? शुगर में वाटर डालते हैं थोड़ा सा? नहीं ना. सो सॉल्यूट जो होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी. अभी शुगर जो है वो इनिशियली सॉलिड स्टेट में होता है एंड व्हेन इट गेट डिसॉल्व्स इन वाटर it gets convert to liquid state. Okay, so solute जो होते हैं they are in discontinuous phase, means उनका phase continue नहीं होता है, it is discontinuous. पहले solid है फिर liquid हो गया. Whereas solvent जो होता है वो हमेशा continuous phase में होता है. It is present in continuous phase. मीन्स वाटर पहले भी लिक्विड है, शुगर अंदर जाने के बाद में भी वो लिक्विड में ही होता है, सिर्फ उसका थोड़ा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा शुगर ऐड करने पे, बट वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. सो देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस फेज. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस, based on the phases of solute and solvent, we are getting 9 types of solution. So first है solid liquid. So solid liquid में क्या होगा? सी वाटर. अभी जैसे सी वाटर है, सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर होता है. सो सॉल्ट जो है वो कैसा है? सॉलिड स्टेट में है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है. बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर. सो इसमें शुगर सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में है, ऐसा. Solid solid, solid solid, so all alloys are solid ना. Now suppose you take brass. Brass is alloy of copper and zinc. तो क्या हम लोग brass को देख के पता चलता है कि ये particular part में
कॉपर है, ये पर्टिकुलर पार्ट में जिंक है, नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं. सो दे फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड दोनों भी सॉलिड स्टेट में है, इसलिए वो सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन बना था. सॉलिड इन गैस मींस सॉलिड को हम लोग गैस में ऐड करेंगे, जैसे आयोडीन इन एयर. लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल in water, alcohol is in liquid, water is also in liquid, gasoline also. Liquid solid, amalgam of mercury with metals. So mercury, अभी suppose तुम्हें copper amalgam बनाना है, तो तुम लोग कॉपर में, कॉपर जो सॉलिड है उसके अंदर मर्क्यूरी थोड़ा सा ऐड करोगे, दैट इज अ लिक्विड. सो एमलगम जो होते हैं मेटल्स के, that are the example of liquid and solid, क्योंकि मर्क्यूरी छोटे अमाउंट में होता है and metal is present in larger amount. Liquid gas, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में है, उसको गैस में नाइट्रोजन में जाएगा तो वो होमोजेनियसली मिक्स्ड हो जाता है, so it forms a liquid gas solution. Gas liquid, CO2 in water, all cold drinks, aerated drinks consist of CO2 in water. Gas solid, hydrogen in palladium, hydrogen is gas and palladium is a metal, so gas in solid. Gas nitrogen, argon, oxygen, all are mixed with each other homogeneously in the mixture of air. This is clear, all of you, types of solution. Ma'am, can you just wait a minute? Yes. You have to write this table also. There is no need to write this table, but you should know this table. Means अभी जैसे तुमने बोला अल्कोहल इन वाटर में, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है. क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, so you should know chloroform is liquid, nitrogen is gas. ये चीजें पता होनी चाहिए. चित्रा, मॉड्यूल में रिलेशन दिए हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड दूसरे के, तो तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं. अभी जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए उसमें तुमने मोलैरिटी किया था, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, मोलैरिटी से मास परसेंट कैलकुलेट किया. यस, तो क्या फॉर्मूला यूज किया हम लोग ने वहां पे? नहीं यूज किया. सो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, बाय लॉजिक आल्सो वी कैन डू. सो देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला. जितने फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं उतने फॉर्मूलाज अच्छे से करो. रुद्र हो गया? Yes, ma'am. Now next is capacity of solution. Capacity of solution to dissolve solute. So now suppose हर एक solution का capacity होता है and उससे ज्यादा वो
अपने अंदर सल्यूट डिसॉल्व करके नहीं ले सकता है। अगर उसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है तो सल्यूट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है बाहर सॉल्यूशन में से। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल, if we had one glass of water or one beaker of water and इसके अंदर suppose you have 500 ml of water, now you are adding salt in it, तुम इसके अंदर salt add कर रहे हो। Now this 500 ml will have a capacity to dissolve a certain amount of salt, ठीक है। Now suppose इसका 500 ml का maximum capacity to dissolve salt is 100 grams, ठीक है। तो जब तक मैंने इनिशियली 10 ग्राम ऐड किया, फिर और 10 डाला, फिर और 10, ऐसे 10 में डालती गई। तो जब तक मेरा मीन्स जब भी मैंने फर्स्ट 10 डाला तभी सोल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड था, 10 ग्राम डिसॉल्व हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट 10 ग्राम डाला तभी भी सोल्यूशन अनसैचुरेटेड था, तो वो डिसॉल्व हो गया। फिर मैंने वापस से 10 ग्राम डाला तब भी सोल्यूशन अनसैचुरेटेड था, तो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसा मैंने 100 जब तक मेरा 100 ग्राम अंदर नहीं जाएगा, 100 ग्राम जाने से पहले तक सोल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा एंड सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होगा। बट जैसे ही 100 ग्राम गया अंदर, सोल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। अभी इसके अंदर तुम अगर 1 ग्राम भी ऐड करोगे ना, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, बाहर प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्लियर। एंड वो टाइम पे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी वो प्रेसिपिटेट बनाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूशन को, कि वो अभी सुपर सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया है, सुपर सैचुरेट हो गया है। ओके, दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes. अभी ये सब जो था, मीन्स ये जो 100 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अभी मैंने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, वाटर को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। अब मैं हीट कर रही हूँ तो इससे क्या होगा कि और हो सकता है 20 ग्राम्स अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। मीन्स टोटल मीन्स जब भी तुम्हारा टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे 120 ग्राम्स अंदर डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अभी मैंने और 10 ग्राम्स ऐड किया, so that is not getting dissolved। इसका मतलब है अभी सोल्यूशन कैसा हो गया, नहीं डिसॉल्व हुआ ना, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट बनाया ना। यस ऑल ऑफ यू, डिसॉल्व नहीं हुआ। Yes, इसका ma'am. मतलब उसने क्या किया, प्रेसिपिटेट बनाया। प्रेसिपिटेट सैचुरेट हो गया। एंड अभी इसके बाद में जितना भी डालूंगी उसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है। एंड ऑल्सो जब भी मैं वो सोल्यूशन को वापस से गैस बंद कर देती हूँ एंड ठंडा करने के लिए रखती हूँ, तो वापस से जब भी 80 डिग्री से वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेंड करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम भी जो उसने डिसॉल्व किया था वो भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। एंड दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes, all of you, is this clear? Yes. Now, अभी ये कंडीशन से क्यों आती है, मीन्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, व्हाई दिस कंडीशंस अकर? सो दैट इज बिकॉज इनिशियली जब भी मैं NaCl डालती हूँ तो NaCl क्या होता है, डिसोसिएट होता है Na+Cl- में। अब NaCl डालने से पहले सिर्फ वाटर था। इसका मतलब क्या था, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ था। यस ऑल ऑफ यू, बराबर ना। सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दूसरे के साथ में वो बीकर के अंदर दे वर
लिविंग टुगेदर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, एंड दैट बॉन्डिंग्स आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, इट इज एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी क्या होता है, इसके अंदर मैं NaCl को ऐड करती हूँ। So when I add NaCl, we get Na plus Cl minus। फिर Na plus क्या करता है, इसके बीच में आ जाता है, yes, and now they also make bonds with NaCl। तो ये NaCl क्या हो गया, वाटर के साथ सराउंड हो गया, yes। Cl माइनस क्या हो जाता है, वाटर के साथ सराउंड हो जाता है, मीन्स उन लोग इनिशियली सारे एक दूसरे से बॉन्डेड है, मीन्स दे मेक स्पेस फॉर Na plus and Cl minus। yes all of you, उन लोग क्या करते हैं, उनके आपस में स्पेस बनाते हैं, तो वो NaCl आता है और क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से। Cl आता है एंड वो हाइड्रेट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से। हाइड्रेट हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, it is getting surround with water molecule। why it is getting surround with water molecule, because it is making bonds with water molecule। yes all of you, Yes, ma'am. एंड जब भी एक टाइम आएगा सोल्यूशन के अंदर, जब भी अंदर का स्पेस मीन्स वाटर का स्पेस खत्म हो जाएगा, मीन्स अभी वो नो मोर वाटर विल मेक बॉन्ड विद सॉल्ट। और जब भी बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा सिचुएशन आ जाएगा, सुपर सैचुरेशन वाला सिचुएशन आएगा ना। अगर बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो वो क्या करेगा, क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, वो डिसॉल्व नहीं होगा सोल्यूशन के अंदर। बॉन्ड्स बनेगा तो डिसॉल्व होगा, बॉन्ड्स नहीं बनेगा तो Precipitate हो सोल्यूशन जाएगा। बाहर फेंका जाएगा, मींस वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। एंड जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा तुम्हारा सोल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? एंड सैचुरेशन में Yes, क्या ma'am. होगा, सारे मॉलिक्यूल्स विल गेट एंगेज्ड, मींस Dissolved. सारे बॉन्ड्स बनाएंगे। ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल भी नहीं रहेगा कि जिसने बॉन्ड नहीं बनाया रहेगा, ऑल विल मेक बॉन्ड्स। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अभी ये हुआ 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। अभी 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, मींस क्या हो रहा है, वी आर गिविंग हीट। तो वो हीट के वजह से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस के बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, एंड वो क्या करेगा, जो हम लोग NaCl डालते हैं उसके साथ वो बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है? क्लियर? मीन्स हम लोग वो हीट देते हैं तो Yes, ma'am. जबरदस्ती वो नेचुरली बॉन्ड नहीं बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, हीट के वजह से उसके आपस के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड वो क्या करता है, NaCl के साथ में बॉन्ड बनाता है। बट जब भी हम लोग टेम्परेचर वापस से ड्रॉप करते हैं तो वो अपना वापस से नेचुरल टेंडेंसी पे आ जाता है एंड वो जो उसने पहले बॉन्ड्स बनाए थे NaCl के साथ वो वापस से ब्रेक हो जाते हैं एंड वो बाहर आ जाता है सोल्यूशन के। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. If Yes. you have any questions, you can ask. चित्रा, जब भी 80 डिग्री सेल्सियस से वापस से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे आया तो जितना भी तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्ट का अंदर गया है वो बाहर आ जाएगा। जैसे 100 उसका कैपेसिटी है बट 80 पे 120 ग्राम्स वो डिसॉल्व कर लिया था, मींस एक्स्ट्रा 20 ग्राम्स उसने डिसॉल्व किया था, तो वो एक्स्ट्रा 20 ग्राम्स क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके चित्रा, any other questions if you have can ask. Ma'am.
Yes, all of you. So now next is solubility. What is solubility? What is solubility? Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature. So all of you, we have already discussed this now. What is the capacity? Capacity का मतलब ही solubility है. Solubility of a substance is the maximum amount of solute that it can dissolve in it at a particular temperature. It is the solubility. So what are the factors affecting solubility? Temperature and pressure. Temperature and pressure. So अभी हम लोग ये factors discuss करेंगे, temperature and pressure वाले. So now first is solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. So अभी हम लोग ने जो discuss किया वो solid in liquid का solubility ही discuss किया. Okay. So solute plus solvent. जब भी हम लोग solute को solvent में डालते हैं तो क्या होगा? It will undergo dissolution and will get solution. Dissolution यानी solute क्या हो जाएगा? Water में dissolve हो जाएगा. So process in which solute get dissolved in solvent is known as dissolution. And dissolution से अपने को क्या मिलता है? Solution मिलता है. फिर process by which solution again separate हो जाता है solute and solvent में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Yes, all of you. बराबर ना? Yes, all of you. Is it correct? Yes. Yes. So now what is unsaturated solution? So we'll write down the various terms which we have already studied. What is unsaturated solution? Solution which can dissolve more solute in it. Yes, what is saturated solution, all of you? Saturated solution कब बनेगा? Yes, saturated solution. No more solute can be dissolved. Yes, so no more solute can be dissolved. इसका मतलब concentration कैसा रहेगा? Solution का constant रहेगा ना? Yes, all of you. When concentration of solution remains same, when concentration of solution remains same, saturated solution is obtained. No more solute gets dissolved. Okay.
Now, what is supersaturated solution, all of you? Solute is precipitate out from solution, is known as supersaturated solution. Okay, all of you, this is clear. Miss, should we make a note of this or It's your wish. okay, Miss? बिकॉज मैं ये पूछूंगी जब कभी भी लेक्चर में, तो तुम लोग को ये सब मालूम होना चाहिए. So when rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization, क्या होगा? Equilibrium will be attended. और तभी solution कैसा रहेगा? Yes, कैसा रहेगा solution? Unsaturated रहेगा, saturated रहेगा कि super saturated रहेगा? I'm saturated. Yes, solution will be saturated. क्योंकि ये कंडीशन पे भी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का कैसा रहेगा? सेम रहेगा ना? कांस्टेंट रहेगा ना? सेम नहीं, कांस्टेंट रहेगा. विल कांस्टेंट और सेम. This is clear, all of you? Yes, all of you. If you want, you can write it down or you can take screenshot. 1 minute time. मैम इसके पहले वाला स्क्रीन दिखाओ ना. So next is the effect of temperature. So to study the effect of temperature, which slide you want? Chitra, screenshot ले लो. नो मिस पहले बोला. Done ना? So effect of Ma'am, temperature. last slide दिखाओ ना. Take screenshot. Done. Yes. To study the effect of temperature of solid in liquid, हम लोग एक ग्राफ स्टडी करेंगे.
एक मिनट ऑल ऑफ यू, मैं वो ग्राफ ही सर्च कर रही हूँ. Yes, all of you can see here the graph for solubility versus temperature. So यहाँ पे क्या सारे ग्राफ कैसे हैं? What is the nature of all graphs, all of you? सारे Increasing. salts, yes, सारे salts देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? When temperature is increasing, solubility is also increasing. Yes, now all of you can check out. Sugar है, KNO3 है, NaNO3 है, KBr है, KCl है. NaCl का थोड़ा सा कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ में. NaBr का भी लिटिल इट इज कांस्टेंट एंड देन फ्रॉम हियर इट इज स्लाइटली इंक्रीजिंग आफ्टर दिस टेम्परेचर. ठीक है. सो यूजुअली क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. तो ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू टेक KNO3, तो जैसे ही मैं KNO3 को वाटर में डालूंगी, इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू K प्लस एंड NO3 माइनस. बराबर ना? फिर K प्लस क्या करेगा? वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा. NO3 माइनस क्या करेगा? वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा. When it is making bonds with water means it is getting dissolved in water. Correct ना all of you? And इसका जो dissociation reaction है, ये कैसा है? Endothermic reaction है. कैसा है? Endothermic reaction है. And we have already studied कि when temperature increases, increasing temperature favors endothermic reaction. Yes, all of you, have you studied this? Yes. Yes. Increasing temperature favors endothermic reaction. So जब भी हम लोग temperature increase करते हैं, इसका dissociation. So when temperature is increases, dissociation of salts increases. Dissociation increase होगा, so ions का formation increase होगा. Ions formation increase होगा, तो क्या होगा? Hydration will increase. Hydration will increase. इसका मतलब bonds हम लोग जो बना रहे हैं water के साथ, that is getting increase and solubility will increase. This is clear all of you. Why temperature is directly proportional to solubility for all salts, almost for all salts. Yes.
almost मैम वो for all. लास्ट वाला सीरियम सल्फेट है ना, उसका ऐसा क्यों Yes. ऐसा? Yes, बता रही हूँ मैं. But there are some salts. अभी जैसे Na2SO4 भी है, Na2SO4 का भी ऐसा आएगा ग्राफ. सीरियम सल्फेट का भी ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ आता है. तो होता क्या है यहाँ पे, अभी जैसे सीरियम सल्फेट है, सो इसका जो डिसोसिएशन है, इट विल बी Ce3 प्लस SO4 2-. सो इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है. कैसा है, एक्सोथर्मिक है. सो डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो मैं जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, डिसोसिएशन रेट विल डिक्रीज. यस, आयन फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, एंड सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम. So this is the effect of temperature on solubility for solid in liquid. So you want, you can take screenshots. ये ग्राफ तुम लोग के एनसीईआरटी में नहीं है. इसको रिमूव करो स्क्रीन को. डन ना, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. Now next is effect of pressure. So for solids in liquid, no effect of pressure. Okay. Okay, all of you? Okay, ma'am. So now solid in liquid का solubility अपना खत्म हुआ. Now in next lecture we'll continue for gas in liquid. Okay. Okay, all of you. So now we'll stop here. Bye bye. Take care. Do homework and Bye, come. ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, bye. Bye bye. Hi, miss. Thank you, miss. Bye, miss. Thank you. Bye. Same to you, Siddhant.